أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر وہ کہے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، میں تیرے رستے میں صدقہ بھی کروں گا اور نیک بھی بن جاؤں گا۔ ہرگز ہرگز اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جان کو مہلت نہیں دیتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے بہت ہی باخبر ہے۔ حضرات گرامی قدر، محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ چوتھا اور ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو۔ ابھی کل کی بات ہے، رمضان شروع ہوا تھا اور آج ختم ہونے کو قریب ہے۔ یہ رمضان کیا زندگی ختم ہونے کو قریب ہے، معلوم نہیں کس پل جو ہے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہ رمضان کی بھی چند گھڑیاں ہی ہیں اور زندگی کے بھی چند لمحات ہی ہیں، یہ غنیمت ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ آؤ اپنے رب کو راضی کر لیں اور اسے منا لیں، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں اور اس کو راضی کر لیں کہ وہ ہمیں جنت عطا کر دے اور اپنی جہنم کو ہمارے اوپر حرام کر دے۔ یہ لمحات بہت تھوڑے ہیں، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے یہ لمحات جو ہے وہ بیت جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ انسان کو سمجھ اسی وقت آتی ہے جب ان چڑیاں جو ہے وہ کھیت چگ جاتی ہیں، لیکن اس وقت سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور اس وقت انسان اپنے ماضی کا جو معاملہ ہوا ہے اسے سدھارنے کی طاقت جو ہے وہ نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے یہ رمضان کے چند لمحات ہیں، 2 راتیں طاق گزر چکی ہیں اور 5 راتیں مزید جو ہے وہ باقی ہیں، بڑی تیزی سے گزر جانی ہے، معلوم نہیں اس میں لیلۃ القدر کہاں پہ ہے، گزر گئی ہے یا گزرنے والی ہے۔ مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ایک مومن وہ صرف لیلۃ القدر کو نہیں دیکھتا کہ لیلۃ القدر آئے گی تو میں نے عبادت کرنی ہے اور وہ لیلۃ القدر نہیں آتی تو میں نے عبادت نہیں کرنی ہے۔ مومن اپنی زندگی کے لمحات کو دیکھتا ہے۔ بسا اوقات زندگی کا ایک لمحہ جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر لیتا ہے وہ لیلۃ القدر سے افضل بن جاتا ہے، اور بسا اوقات پوری رات لیلۃ القدر جس کے بارے میں انسان کو خبر ہی نہیں اور اس میں وہ کچھ کر ہی نہیں رہا، وہ اس کے لیے وہ زندگی کے اس چھوٹے سے لمحے سے کہیں نیچے جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ صرف طاق راتوں میں عبادت نہ کیجیے۔ ٹھیک ہے یہ راتیں بڑی عظمت والی ہیں، زندگی کا ہر لمحہ ہی بڑا قیمتی ہے، اور بالخصوص رمضان کے لمحات یہ سارے بڑے قیمتی ہیں۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معمول کی باتیں ہیں لیکن بڑی قیمتی باتیں ہیں، بڑی ضروری باتیں ہیں۔
ان तमाम लम्हात को हम अपना कीमती बना लें। जो भी वक्त गुजर रहा है, क्यों मालूम नहीं, जो सांस आ गया है इसके बाद दूसरा सांस भी आना है या नहीं आना है, ये किसी को मालूम नहीं है। तो हर वो लम्हा जो अल्लाह की याद में गुजर गया, तौबा इस्तिगफार में गुजर गया, तिलावत में गुजर गया, दुआओं में गुजर गया, वो इंसान के लिए लैलतुल कदर ही है, वो इंसान के लिए कामयाबी का जामन ही जामन है। और वही घड़ी जो है वो क़यामत के दिन काम आ जाने वाली है। और वो रात चाहे लैलतुल कदर ही क्यों ना हो, जाया कर दी, गप्पे लगाता रहा और जो है वो इधर उधर फजूल कामों में टाइम वेस्ट करता रहा, तो वो रात जो है वो काम नहीं आ सकेगी। इसलिए जरूरी है कि इन औकात को कीमती बनाएं। कैसे बनाया जा सकता है? नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल-अश्र अल-अवाखिर शद्द मिज़रहु व अयक़ज़ अहलहु व अहया लैलहु। 3 काम जो है वो किया करते थे। नंबर 1, शद्द मिज़रहु, अपना लंगोट कस लेते, अपनी आस्तीनें चढ़ा लेते। ये किनाया होता कि फजूल कामों से गुरेज करना है, जो काम करना है सारी तवज्जो उस पे लग जाए। जिस वक्त इंसान ईद कुर्बान के मौका पर जानवर कुर्बान करता है, क्या करता है? अपने कपड़े समेट लेता है, अपने बाजू जो है वो ऊपर चढ़ा लेता है, कोई कमीज का किनारा इधर उधर बिखरा उसको लपेट लेता है, और उस वक्त छुरी हाथ में पकड़ी है, काल आती है तो काल सुनता है, जानवर लेटा लिया है, कोई पीछे से आवाजें दे तो सुनता है। सारे काम छोड़कर इंसान अपने काम के ऊपर मुतवज्जे हो जाता है। ये मकसूद है शद्दा मिज़रहु, कि इंसान मुकम्मल अल्लाह की इबादत की तरफ जो है वो तवज्जो करे और अपने रब को जो है वो मनाने के लिए जो है वो कोशिश करे। नंबर 2, लोगों अपने घर वालों को भी जगाए। आप सल्लम आखिरी रातों में, सिर्फ आखिरी ताक रातों में नहीं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं में नहीं, बल्कि तमाम रातों में जैसे ही आखिरी अशरा दाखिल हो जाता, आप अपने घर वालों को जगाते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। ऐ लोगो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन लोग होंगे और पत्थर होंगे, और उसके ऊपर बड़े सख्त किस्म के फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर कर रखे हैं, जिनके दिल में जर्रा बराबर भी नरमी नहीं पाई जाती है, और वो अल्लाह तबारक व तआला के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते, जो उनको हुक्म होता है वो कर गुजरते, और वो सजा के लिए मुतय्यन है। वलियाज़ु बिल्लाह, वहां सिर्फ और सिर्फ सजा ही का मामला होगा। पर मैं लोगों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। रात को खुद भी उठो और अयक़ज़ अहलहु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी बच्चों को भी जगाते, उनको भी जगाओ। अल्लाह के बंदो उठो, ये सोने का टाइम नहीं है, ये गप्पे लगाने का टाइम नहीं है, ये नावल और कहानियां पढ़ने का टाइम नहीं है, ये फेसबुक और व्हाट्सएप देखने का टाइम नहीं है। आओ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राजी करें और उनको इबादत पे लगाएं। आपका लगाना ही आपकी नजात का जो है वो जरिया बन जाएगा। वो करते हैं नहीं करते हैं ये एक अलग मसला है। आपने जब कोशिश कर दी है और उनको मायल कर दिया है, आपका यही अमल अल्लाह के दरबार में कबूल हो गया तो आपकी निजात का जरिया बन जाएगा। तीसरा अमल जो है अहया लैलहु, अपनी रात को इबादत में सरफ कीजिए। आप सारी रात इबादत करते थे, सारी रात कोई और दूसरा काम नहीं करते थे, पूरी पूरी रात। हदीस में आता है रमजान के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात कभी इबादत नहीं, कुछ हिस्सा आराम करते, कुछ हिस्सा इबादत करते, अपने घर के कामकाज करते। लेकिन जैसे ही रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो जाता, आखिरी ताक रातें शुरू हो जाती, नहीं आखिरी अशरा शुरू हो जाता, तो रमजान की तमाम रातों में
آپ اللہ تبارک व تعالیٰ کی पूरी रात जाग कर जो है वो इबादत करते हैं। क्या हम भी करते हैं? 21वीं में 23वीं में ताक रातों में कोशिश होती है कुछ जाग लिया जाए, वगरना दूसरी रातों में आज कौन सा कोई ताक रात। पहली बात तो ये है कि हमें क्या मालूम कि ताक रात कौन सी है। चांद के बारे में तो आप खबरें सुनते रहते हैं, कभी कभी खुद चढ़ता है और कभी कभी लोग चढ़ा देते हैं, और फिर तारीख आगे पीछे हो सकती है, जिसकी वजह से लैलतुल कदर भी आगे पीछे हो सकती है। यही मकसूद है कि लोगों 10 की 10 रातें इबादत करो, ताकि आपको कन्फर्म जो है वो लैलतुल कदर जो है वो मिल जाए। इसलिए पूरी रात, रमजान की तमाम रातें इबादत में सर्फ करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जो है वो इबादत किया करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे, नवाफिल पढ़ा करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, दुआएं किया करते थे। ये मामला किस कदर अजीम है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। वो नेक लोग जो अल्लाह के बंदे हैं, उनके पहलू नरम गरम बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। वो बिस्तरों पे लेटते नहीं हैं, बल्कि रात को उठ जाते हैं और उठकर जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं। तुझे मालूम है अल्लाह ने ऐसे अपने बंदों के लिए कैसे इनामात तैयार कर रखे हैं। ला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम, किसी बंदे को हमने इल्म दिया ही नहीं है। ऐसे बंदों की राहत का, खुशी का और उनकी मुसर्रत का और उनके इनामात का हमने क्या इंतजाम कर रखा है, ये किसी आदमी को मालूम नहीं है, सिर्फ हमें मालूम है। जब हम उसको अजर देंगे तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना जो है वो बाकी नहीं रहेगा। लोगों, ये रातें बिस्तरों पे गुजारने वाली नहीं है, बल्कि मसल्ले पे गुजारने वाली हैं, जाए नमाज पे गुजारने वाली हैं, जिक्र अस्कार में गुजारने वाली हैं। 3 काम। चौथा काम ये है, ये आखिरी अशरे में एतकाफ बैठा जाता है। एतकाफ बैठने का मकसद भी यही है, लैलतुल कदर मिल जाए। 83 साल की इबादत से ज्यादा अजर है। आप अंदाजा करें, जिस बंदे को लैलतुल कदर मिल जाती है, क्या उसकी बख्शिश नहीं होगी जब उसने इबादत की है? यकीनन बख्शिश हो जाएगी। जिस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला 83 साल से ज्यादा इबादत का अजर अता फरमा रहे हैं, उसकी बख्शिश नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? यकीनन उसकी बख्शिश हो जाएगी। फरमाया लोगों एतकाफ बैठो। आप सल्लम जो है वो तकरीबन मदीना में हर साल एतकाफ करते रहे, और जिस साल फौत हुए उस साल जो है आपने 20 दिन का एतकाफ किया। 20 दिन का जो है वो एतकाफ किया। गोया कि एतकाफ करना सुन्नत मुअक्कदा है। ये सिर्फ सुन्नत नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन हम जो है जहां कहीं कोई मतलब होता है तो एतकाफ कर लेते हैं, क्या मतलब नहीं होता वहां कौन बैठता है? अगर एसी ना चले गर्मियों के दिनों में, उस मस्जिद में कोई बंदा एतकाफ बैठता ही नहीं। वो कहते यहाँ पे तो एसी नहीं है, यहाँ पे तो फलां चीज नहीं है। तो ऐसा नहीं है। एतकाफ जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। एसी हो या ना हो, दूसरी सहूलियात हो या ना हो, इंसान को अल्लाह को राजी करने के लिए एतकाफ करना चाहिए। एतकाफ का बुनियादी मकसद क्या है? जिसको सारी जिंदगी टाइम नहीं मिला, वो अपने मोतकफ में जाकर जो है वो सो जाए। अपनी मोतकफ में जो है वो मीटिंग रूम बना ले, लोगों को बुला ले, जमघटा कर ले, और सारी रात और सारा दिन जो है वो गप्पे लगती रहें। नहीं, कतन नहीं। ऐसे काम के लिए एतकाफ नहीं किया जाता। मोबाइल लेकर बैठ जाए और जो देखना चाहता है वहां पे अलहदा बैठा देखता रहे, कौन कुछ देख रहा है। पर मैं नहीं, इस काम के लिए एतकाफ नहीं है। एतकाफ का मकसद क्या है? सारी दुनिया से मुनक़ते हो जाओ, कट जाओ और एक अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ लो। गोया के दूसरे लफ्जों में, जैसे मुआशरे में, जमहूरी दौर में लोग किसी असेंबली हॉल के सामने जाकर धरना दे देते हैं, हमारा काम कीजिए नहीं तो हम यहां से नहीं जाएंगे। ये भी एक किस्म का अल्लाह के दरबार में धरना ही देना है। या अल्लाह तेरे दर पे आ गया हूं, 1 दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, 9 दिन, 10 दिन और 10 रातें तेरे सामने मैं धरना दे रहा हूं। या अल्लाह तू अब भी माफ नहीं करेगा? या अल्लाह तू अब भी मुझसे राजी नहीं होगा? या अल्लाह फिर तू कब राजी होगा? उससे बड़ा बदनसीब इंसान कौन हो सकता है? 10 दिन का इत्काफ भी कर ले और उसे पता ही ना चले कि मेरा रब मुझसे राजी हुआ कि नहीं हुआ। इंसान अमल करे,
اسے خود یقین ہوتا ہے, تسلی ہوتی ہے, میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے, یقیناً وہ راضی ہو جائے گا. لیکن جیسے آیا تھا ویسے ہی اٹھ کر چلا گیا, گپیں لگاتا رہا, دل کے اوپر, جسم کے اوپر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی, تو سمجھ لے اس کا اعتکاف کسی کام کا نہیں ہے. اعتکاف کا مقصد یہی ہے, انسان گفتگو نہ کرے, لوگوں سے کٹ جائے. غلو ہے, کچھ لوگ تو برقع پہن لیتے ہیں کہ چہرہ بھی نظر نہ آئے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں. دونوں ہی غلو ہے. کسی سے بات کرنا بھی درست نہیں, بہت شدید معاملہ ہے کر لیں, کوئی ضروری معاملہ 1-8 منٹ میں 2 منٹ میں بات کریں اور اسے چھٹی دے دیں, اور اپنے جائے روم میں, اپنے جائے اعتکاف میں چلے جائیں, وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کریں. اور یہ پردہ وغیرہ کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا. آپ اصل میں اعتکاف میں جاتے تھے, مسجد میں آتے, نماز پڑھتے, پھر چلے جاتے, آپ نے کبھی پردہ نہیں کیا. مقصود صرف دنیا سے منقطع ہونا ہے کہ انسان سارے کام چھوڑ کر اپنے رب کو جو ہے وہ راضی ہونے کے لیے بیٹھ جائے. اس لیے اپنی اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ کے عبادت کرے, قرآن پڑھے, ذکر و اذکار کرے, تلاوت کرے, دعا مانگے, اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ سے معافی مانگے. اور یہ صرف اعتکاف میں نہیں, یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں بیٹھا ہے تو اپنے کمرے میں, اپنی علیحدہ جگہ پہ جائے نماز بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور اللہ کو یاد کرے. جو بھی کام مسجد میں بیٹھ کے کر سکتا وہ گھر میں کر لے. ٹھیک ہے, اسے اعتکاف کا ثواب تو نہیں ملے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کے راز و نیاز کی محفل جو ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی, اور اللہ کو انسان جو ہے وہ راضی کر سکتا ہے. 4 کام. 5واں کام جو ہے وہ کرنے والا ہے اس رمضان میں, وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. لوگوں قرآن مجید کی تلاوت کرو, کثرت سے کرو, بہت زیادہ کرو. قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق. قرآن رمضان میں نازل ہوا اور آپ وسلم جبریل کو سنایا کرتے تھے, جبریل سنا کرتے تھے. آخری سال آپ نے 2 مرتبہ مذاکرہ کیا, 2 مرتبہ قرآن سنایا اور 2 مرتبہ سنا. اس سے معلوم ہوا قرآن ختم کرنا چاہیے. یہ کوئی فرض ہے؟ ہر چیز فرض نہیں کی جاتی, بہت سارے غیر فرض کام بھی کیے جاتے ہیں. فرض تو ڈیوٹی ہوتی ہے, وہ تو ہم نے ادا کرنی ہے, اس میں تو کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا. نفل کام کرنے ہوتے ہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے, اپنے رب کے قریب ہونا ہے, تو نفلی اور استحباب والے کام جو ہے وہ کرنے ہیں. سنت والے کام جو ہے وہ انسان کرتا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں, سالن میں گھی ڈالنا فرض ہے, پانی میں ابال کے کھا لو. مرچیں ڈالنی اور نمک ڈالنا تو فرض ہے. کس نے کہا ہے؟ سالن میں یہ تڑکا لگانا جو ہے وہ فرض ہے. کس نے کہا ہے؟ کوئی چیز فرض نہیں. اپنے ذائقے کے لیے, اپنے کھانے کے حسن میں جو حسن کو دوبالا کرنے کے لیے انسان سب چیزیں جو ہے وہ ڈالتا ہے تاکہ یہ چیز زیادہ مزیدار بن جائے. اسی طریقے سے عبادت میں حسن پیدا کرنے کے لیے یہ نوافل کا اہتمام کرنا پڑتا ہے, نفلی عبادات کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. جس قدر انسان نفلوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی عبادت میں خوبصورتی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے, وہ اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید کثرت سے پڑھیے, ختم کیجئے, ختم ہو جائے دوبارہ ختم کیجئے. بعض علماء نے کہا 3 راتوں سے کم میں آپ نے منع کیا ہے کہ ختم نہ کیا جائے, لیکن یہ عام حالات میں 3 راتوں سے پہلے قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے. اگر فضیلت والی جگہ ہے یا فضیلت والا وقت ہے تو اس میں انسان زیادہ پڑھ سکتا تو پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. مثلا بیت اللہ میں بیٹھا ہوا ہے, اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, رمضان کی آخری راتوں میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ وقت ہے, زیادہ بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. عام دنوں میں 3 راتوں سے زیادہ جو ہے وہ پہلے ختم نہیں کرنا چاہیے. اس لیے قرآن مجید ختم کیجیے. لوگوں قرآن مجید پڑھنے سے, میں نے دروس میں ذکر کیا تھا, انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے, اللہ کی نصرت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے, انسان کو یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے, انسان کو اپنے رب کے اوپر اعتماد جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے, دنیا سے انسان مستغنی ہو جاتا ہے اگر قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے, اس کے بیش بہا فائدے ہیں, انسان سوچ نہیں سکتا. یہ رزق میں برکت دیتا ہے, اولاد میں برکت دیتا ہے, گھر میں برکت دیتا ہے, لیکن افسوس کہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا, یہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا. فرمایا لوگوں قرآن پڑھو, گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں, شیاطین گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, جنوں کا, جادوگروں کا اور نظر بد والوں کا سایہ دور ہو جاتا ہے. پڑھیے تو صحیح, قرآن مجید تو پڑھیے صحیح.
یہ قرآن مجید غلاف میں لپیٹنے کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ لپیٹ کر جو ہے وہ سنبھال کر رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ سونے کا ریشم کا لباس جو ہے وہ بنا کر قرآن کو لپیٹ کر اوپر والے رکھنے میں جو ہے وہ رکھ دیا جائے، یہ ادب نہیں ہے۔ اس کا ادب اصل کیا ہے؟ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ اس کا اصل ادب ہے۔ یہ لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا لوگوں زندگیاں بھی بدل جائیں گی اور قیامت کے دن سب سے بڑا سفارشی قرآن مجید بن کر آئے گا، سب سے بڑا سفارشی۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، لوگوں یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، یہ کاغذ جو ہے نا یہ مخلوق ہے، یہ سیاہی مخلوق ہے، لیکن اس کے جو حروف ہیں، الفاظ ہیں، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، گویا کہ اللہ کا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ سے سفارش کرے گا، یا اللہ اس کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے آپ سے کہیں اس بندے کو معاف کر دے، پھر وہ معاف نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی سفارش یقینی ہے، جس کے حق میں قرآن نے سفارش کر دی یقیناً وہ بخشا جائے گا، یقیناً وہ جنت میں چلا جائے گا اور جہنم سے جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کو جو ہے وہ پڑھیے، کثرت سے پڑھیے اور کوشش کیجیے سمجھ کر پڑھیے۔ قرآن مجید کو اپنی زندگی کے مطابق ڈھالیے، اپنی زندگی کو بنائیے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے گھروں میں دیکھیے نورانیت پیدا ہو جائے گی، سکینت نازل ہوگی، آپ کو نور نظر آئے گا، روشنی نظر آئے گی، گھر کا ماحول جو ہے وہ پرسکون نظر آئے گا۔ تب جس وقت اس قرآن مجید کو واقعی دل لگا کر پڑھا جائے، سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور مزے کے ساتھ پڑھا جائے، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کا قرآن سمجھ کر جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والے، نہ بیٹھنے والے، ان راتوں سے فائدہ اٹھانے والے خوب قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کیجیے، جتنی ہو سکتی ہے اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اسی طریقے سے اس وقت میں جو چند لمحات ہیں، چند گھڑیاں ہیں، ان میں جو ہے وہ ذکر و اذکار کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے۔ مومن کا مضبوط ترین اسلحہ، اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق جوڑنے والا سلسلہ وہ ذکر کا ہے۔ لوگوں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ فرمایا تم کسی محفل میں یاد کرتے ہو، میں بھی تمہیں محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تم مجھے اپنے دل میں یاد کرتے ہو تو میں بھی اپنے پاس تمہیں یاد کرتا ہوں۔ میں تم سے ویسے ہی غافل نہیں، لیکن جو بندہ مجھے ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اسے خاص طور پہ یاد کرتا ہوں۔ لوگوں ذکر جو ہے یہ سب سے افضل عمل ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لوگوں یہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا یہ کس قدر افضل عمل ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ ذکر بتلا دو، کوئی خاص وظیفہ بتلا دو، فرمایا موسیٰ لا الہ پڑھا کہا یا اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے۔ کہا موسیٰ تجھے بھی پتا نہیں، ساری دنیا پڑھتی ہے پھر کیا ہوا؟ اس سے زیادہ افضل ذکر اور افضل وظیفہ کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ افضل ذکر اور افضل وظیفہ کوئی نہیں ہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے، 99 رجسٹر ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، ایک چھوٹی سی پرچی جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا دوسرے پلڑے میں ڈال دی جائے گی، اور وہ پلڑا جو ہے وہ کیا ہے؟ بھاری ہو جائے گا۔ وہ 99 سیاہیوں کے رجسٹر، خطاؤں کے رجسٹر، گناہوں کے رجسٹر وہ ہلکے پڑ جائیں گے، اور یہ لا الہ الا اللہ والا رجسٹر جو ہے، یہ پلڑا جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا۔ سب سے افضل ذکر ہے، کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا تھا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ فرمایا یہ کلمہ دن میں ایک دفعہ مجھے پڑھ لینا، ساری کائنات کی جو دولتیں ہیں ان سے کہیں زیادہ مجھے پیارا۔ مجھے ساری دنیا کی دولتیں دے دی جائیں اور مجھے کہا جائے ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لو، میں اس کے پڑھنے کو ترجیح دوں گا، دنیا کی دولتیں لینے کو ترجیح نہیں دوں گا، یہ اس سے کہیں زیادہ افضل۔ لوگ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اٹھتے بیٹھتے یہ ذکر نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے،
अल्लाह तेरे अंदर कोई ऐब नहीं, तू नकाइस से, कमियों से, शिरक से, हर चीज से पाक और मुबर्रा है। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह मेरे अंदर जितनी सलाहियतें और कुव्वतें और जितनी नेमतें तूने दे रखी सारी तेरी हैं। इस कायनात में जितने इनामात और एहसानात है सारे तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तू सारी कायनात से बड़ा है, तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तू सबसे अजीम है और सबसे बड़ा है और सबसे सुपर पावर है और सबसे ज्यादा कवी और मजबूत है। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। मैं किसी की इबादत नहीं करता, किसी को सजदा नहीं करता, किसी के नाम की नजर नहीं देता, किसी के नाम का चढ़ावा नहीं देता, किसी के नाम की मन्नत नहीं मानता। या अल्लाह जितनी भी इबादतें हैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए हैं, तेरे सिवा मैं किसी और की इबादत नहीं करता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह नेकी करता हूं तो तेरी तौफीक से करता हूं, बुराई से बचता हूं तो तेरी तौफीक से बचता हूं, मेरा अपना कोई कमाल नहीं। या अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए आ गया हूं मस्जिद में तो मैंने कुछ नहीं किया, ये भी तेरी तौफीक है। इस तेरी तौफीक में भी तेरा ही शुक्रिया जो है वो अदा करता हूं। अगर ये कलेमात इंसान थोड़ा सा, इतना ही तर्जुमा जो मैंने जिक्र किया है, इसका माना तो बड़ा वसी है, लेकिन इतना ही तर्जुमा जो मैंने जिक्र किया है, इन मानी को जहन में रखकर अगर ये कलेमात कह देता है, मैं रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं, मुमकिन ही नहीं है कि मेरा रब जो है उस बंदे से राजी ना हो, उस बंदे को जो है वो मुआफ ना कर दे। और हदीस में भी मौजूद है, रात को अगर किसी की अचानक आंख खुल जाए, वो ये कलेमात कहे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बिगफिरली। ये कलेमात कह के कहता है, रब्बिगफिरली, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। फरमाया अल्लाह ताला उसे माफ कर दे। फरमाया अगर उठ के वुजू कर ले, नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज कबूल हो जाएगी। ये कलमे इतने कीमती हैं, हमें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है, ये तो कल पता चलेगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीजान। लोगों, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये तराजू को भर देगा। सातों आसमान और सातों जमीन उस पल्ले में डाल दिए जाएं, वो पल्ले नहीं भरेंगे। और ये एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहना जो है तराजू को भर डालेगा। लेकिन कौन सा अल्हम्दुलिल्लाह? वही जो मैंने अभी जिक्र किया। थोड़ा सा सोच कर, या अल्लाह मेरे ऊपर, कायनात के ऊपर जो कुछ इनामात है तेरे हैं, या अल्लाह तेरी ही तारीफ बयान करता हूं, किसी और की तारीफ नहीं करता, किसी का शुक्रिया बयान नहीं करता। या अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तेरा ही शुक्रिया बयान करता हूं। ये तमाम कलेमात के मानी याद करके थोड़ा थोड़ा सा गौर करके इन कलेमात को पढ़िए। ये कलेमात बड़े कीमती हैं, इन लम्हात को बहुत ज्यादा कीमती बना देंगे। तसव्वुर नहीं कर सकते हैं आप कि इन लम्हात में क्या अल्लाह ताला हुस्न और क्या खूबी पैदा कर देंगे जब आप इन कलेमात के साथ अपनी जुबान को जो है वो तर कर लेंगे। और भी बेशुमार कलेमात हैं, वक्त थोड़ा सा है, मैं बात को खत्म करना चाहता हूं। जिक्र को अपना मामूल बनाइए और खुसूसी आखिरी लम्हात में ज्यादा से ज्यादा जो है वो जिक्र कीजिए। और एक और अमल जो इन लम्हात में करने वाला है वो है थोड़ा सा अलहदा बैठकर अल्लाह तबारक व तआला को सामने रखकर अपने माजी में किए हुए, जमाना जाहलियत में किए हुए अपने गुनाह, अपने कह लीजिए स्याह करतूत, उन्हें याद करके अल्लाह की कितनी रहमत है, मेरे ऊपर पर्दा डाल रखा है, आपके ऊपर पर्दा डाल रखा है, ये बहुत बड़ी रहमत है। मेरे ऐबों का आपको नहीं पता, आपके ऐबों का मुझे नहीं पता। कुछ मामला कभी कभी जाहिर हो जाते हैं लेकिन ज्यादा जाहिर नहीं होते हैं। हर बंदे का अपना अपना मामला है और अल्लाह जानता है या वो इंसान जानता है। ये कितनी बड़ी मेरे रब की रहमत है, वो अपने बंदों को जलील नहीं करता, वो रुसवा नहीं करता जब तक इंसान हदों को ना फलांग जाए। जब इंसान अल्लाह की हदों को फलांग जाता है फिर अल्लाह उसे तबाह कर देता, फिर उसे जलील कर देता और रुसवा कर देता है। लेकिन अल्लाह ने हमारे ऐबों पर पर्दा डाल रखा है। किसी ने कहा था अगर हमारे ऐब एक दूसरे के सामने जाहिर हो जाए शायद हम एक दूसरे का चेहरा भी ना देखें। हैं? ये ऐसा बंदा है, ये इस तरह के काम करता है, ये तो देखने के काबिल नहीं है। हम एक दूसरे को देखना भी गवारा ना करें। लेकिन वो मालिक किस कदर गफूर रहीम है, किस कदर सत्तारुल अयूब है, ऐबों के ऊपर पर्दा डाल रखा और किसी के बारे में बतलाता नहीं। तूने किया है, तेरे रब को पता है। जाओ अपने रब के साथ बैठकर यहीं पे मामला जो है वो खत्म कर लो और अल्लाह से माफी मांग लो।
अपने गुनाहों की माफी मांग, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगिए। इन आखिरी लम्हात में गुनाहों की माफी मांगने से अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ गुनाह माफ कर देता है बल्कि इंसान के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। सारे के सारे बड़े से बड़े गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। और ये वाकया मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूं। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे को बुला के कहेंगे तूने फलां जुर्म नहीं किया, वो नजर झुका लेगा और बड़ी आहिस्ता सी आवाज में कहेगा हाँ किया था। फिर दूसरा, फिर तीसरा, चंद गुनाह गिनाने के बाद छोटे छोटे अल्लाह ताला कहेंगे फरिश्तों इसने ये जो गुनाह किए थे ना उनको नेकियों में बदल दो। इंसान गर्दन उठा लेगा, या अल्लाह वो फलां बहुत बड़ा जुर्म वो तो तूने जिक्र ही नहीं किया, मैंने तो फलां गुनाह भी किया था। अल्लाह अकबर, क्या ऐसा भी माजरा होगा? वो अल्लाह जो जब्बार है, कहार है, शदीदुल बत्श है और उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, उसके सामने अपने गुनाहों को खुद बयान करेगा, या अल्लाह ये भी मैंने गुनाह किया। हाँ, जिस वक्त उसकी रहमत इंसान को घेर लेगी। और वो रहमत कब घेरनी है? जब इंसान ने दुनिया में तौबा की है। अगर मुआफी मांगी है तो अल्लाह तबारक तआला के यहाँ इंसान जाकर भूल जाएगा मैंने तौबा की है कि नहीं की। उसे यही याद रहेगा नेकियां तो थोड़ी सी हैं, गुनाह बहुत ज्यादा कर रखे हैं, लेकिन तौबा कबूल हो चुकी होगी। अल्लाह ताला उसको गुनाह याद करवाएंगे तो फिर वो खुद जिक्र करेगा, या अल्लाह वो फलां गुनाह, या अल्लाह उसको भी नेकियों में बदल दे। तो फरमाया लोगों, ये तौबा जो है वो इंसान के गुनाहों को नेकियों में बदल देती है। ये तौबा कीजिए। कौन सी तौबा? सादा सी बातें हैं। आज के जुमे में कोई खास बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं कहूं कि इससे ज्यादा कोई खास है ही नहीं तो इसमें भी कोई मुबालगा। ये वही बातें हैं, लेकिन यही बातें निजात का जरिया हैं, यही कामयाबी का जरिया है। लोगों, तौबा क्या है? अस्तगफुरुल्लाह, 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 अस्तगफुरुल्लाह। 5 तस्बीहें पढ़ ली, 10 तस्बीहें पढ़ ली, मैंने 1000 मर्तबा विर्द कर लिया, ठीक है, ये अजर का बायस है, लेकिन ये तौबा नहीं है। ये जिक्र कहा जा सकता है, अल्लाह की याद कही जा सकती है, ये तौबा नहीं है। तौबा का मतलब पता क्या है? इंसान तन्हाई में बैठे और तन्हाई में बैठकर अपने गुनाह को याद करे। जब वो गुनाह याद आ जाए, इंसान के जिस्म पे लर्जा तारी हो जाए। हैं, मेरा रब जो 7 आसमानों और 7 जमीनों को पकड़कर हाथ में ले लेगा, वो रब, मैंने उसकी नाफरमानी की है, वो मेरी शहरों को पकड़ ले, मेरा गला दबा दे, मैं सांस कहां से लूंगा? वो मुझे फालिज पैदा कर दे, मैं अपने हाथों को हरकत कहां से दूंगा? मैं अपनी टांगों को हरकत कहां से दूंगा? मैं अपने दिमाग से सोचूंगा कैसे? वो अल्लाह ताला, मैंने उसकी बगावत की है। रोना आ जाए, पेशानी पे पसीना आ जाए, जिस्म कांपने लगे, इस तरीके से थोड़ी सी मुआफी मांगिए। फिर देखिए अल्लाह तबारक ताला गुनाहों पे मुआफी का कलम नहीं फेरते, बल्कि वो कहता है मुझे उससे कहीं ज्यादा खुशी होती है जिसको मौत देखने के बाद फिर अपनी सवारी मिल जाती है, पानी मिल जाता है और खाना मिल जाता है, इतना खुश होता है। और वो कहता है या अल्लाह तू मेरा बंदा तो मैं तेरा रब। उसे पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है, इतना खुश होता है। फरमाया जब मेरा बंदा वाकई मुझसे तौबा करता है, मैं इससे भी ज्यादा खुश होता हूं, मैं इससे भी ज्यादा खुश होता हूं। फरमाया लोगों, वो आंख जिस आंख से अल्लाह के डर से आंसू निकल पड़ता है, वो एक छोटा सा आंसू का कतरा अल्लाह की वो ठाठें मारती हुई और समंदर, वो जहन्नम की जो आग है जो इतनी जलाई हुई है, इतनी जलाई हुई है कि हजारों मील ऊपर से भी गुजर जाए तो वो जानवर और परिंदा जो है वो भूनकर नीचे गिर पड़ेगा। वो जहन्नम जिसकी ताकत हम नहीं रखते उसको बर्दाश्त करने की। ये दुनिया की माचिस की एक लकड़ी जो है हल्की सी, इसको जला दिया जाए और इसको जो है वो उसके ऊपर उंगली रख दी जाए, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मामूली सी आग, अगर भांबड़ मचा दिया जाए उसके तो करीब नहीं जाया जाता। फरमाया जहन्नम की आग तो इससे 69 गुना ज्यादा है, वो आग उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फरमाया आंसुओं का एक कतरा जो अल्लाह के डर से अलहदा बैठकर तूने गिरा दिया है, ये जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी हो जाए, ये जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी हो जाए। ये इत्काफ में बैठ जा, कमरे के एक कोने में बैठ जा, बिस्तर में घुस जा और तन्हाई में बैठ जा, अपने रब को याद कर ले और याद करके अपने गुनाहों को याद कर ले। या अल्लाह वो गुनाह किया, गलती हो गई,
या अल्लाह वो भी किया, तीसरा भी किया, 10वां भी किया, या अल्लाह 1000 किए हैं, या अल्लाह माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं, अज़म करता हूं आइंदा नहीं करूंगा, या अल्लाह आज माफ कर दे। जिंदगी ना बदल जाए तो मेरे पास आज, इंसान की काया ना पलट जाए तो फिर देखिए। लेकिन ऐसी तौबा कीजिए तो सही, ऐसी माफी तो मांगिए, ऐसा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़कर देखिए तो सही, दिल के अंदर कैसे नूर पैदा होता है, कैसे रोशनी जो है वो पैदा होती है। वक्त गुजर गया है, एक आखिरी बात है, और वो आखिरी बात ये है, आखिरी लम्हे हैं, ये जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, ये रमजान के नहीं है। मालूम नहीं कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाना है। लोगों, अपने भाइयों को माफ कर दो, लोगों अपने अजीजों अकारब को माफ कर दो, अपने वालिदैन को माफ कर दो, अपनी औलादों को माफ कर दो, अपनी बीवी को, अपने शौहर को माफ कर दो। अल्लाह तबारक व तआला मुआफ करने वालों को पसंद करता है और मुआफ करने वालों को खुद ही माफ फरमा देता है। माफ कर दो, माफी से बड़ी कोई नेकी नहीं है। हुस्न खुलक, ये क़यामत के दिन सबसे वजनी चीज होगी। फरमाया हुस्न खुलक में ये सबसे बड़ा अच्छा अखलाक है कि किसी की ज्यादती पे उसको माफ कर दिया जाए। इंसान ताकत रखता है बदला लेने की, लेकिन फिर माफ कर देता है, कोई बात, जाओ मेरे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दी। फरमाया तुम बंदे को माफ कर दो, आसमानों पे रब जो है वो तुम्हें सारी जिंदगी के गुनाह तुम्हारे माफ कर देगा। वो बंदा जिसका मैंने जिक्र किया है कि एक आदमी अल्लाह के दरबार में पेश होगा, कोई नेकी नहीं है, ईमान होगा यकीनन, लेकिन और कोई नेकी नहीं है, बुराइयां ही बुराइयां हैं। अल्लाह पूछेंगे कोई नेकी है? कहेगा या अल्लाह नेकी तो कोई नहीं है। कहा को तलाश करो, कहा एक है, एक मैं छोटा सा काम किया करता था। कहा वो क्या किया करता? कहा या अल्लाह मैं कर्ज दे देता था, वो वापस कर देते मैं ले लेता, ना करते तो मैं छोड़ देता था। अपने नौकरों को, अपने सेक्रेटरी को बोलता जाओ फलां बंदे से कर्ज लेना लेकर आओ, अगर वो दे दे ले लेना, अगर वो कहे कि मेरे पास इतने नहीं है थोड़े हैं, वो थोड़े ले आना, बाकी छोड़ देना। अगर वो कहे मेरे पास नहीं है वो सारे छोड़ देना। या अल्लाह मैं सारे छोड़ दिया करता था। है मेरे बंदे तू क्यों करता था, ऐसा क्यों करता था? कहा या अल्लाह मैं इसलिए माफ कर देता था, शायद मेरा रब जो है वो मुझे माफ कर, शायद मेरा रब जो है वो मुझे माफ कर दे। पर मैं जाओ मेरे बंदे, फिर मैंने तुझे माफ कर, मैंने तुझे माफ कर, तूने मेरे बंदों को माफ किया है, मैंने तुझे माफ कर दिया। अफसोस के साथ, बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ता है, हम भाई भाई, बेटे बाप के साथ, माँ के साथ, करीबी रिश्तेदारों के साथ चंद रुपए के इवज में हम दुश्मनियां पाल लेते हैं, मरने मारने पर तुल जाते हैं। अपने भाई को 2 रुपए छोड़ने के लिए तैयार, अपने भाई को 2 रुपए छोड़ने के लिए तैयार नहीं। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला फिर गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। आज हम उसका कहा नहीं मानते, ये रब का हुक्म है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास, लोगों गुस्से को पी जाओ और लोगों को मुआफ कर दो। जन्नत मैंने इन्हीं लोगों के लिए तैयार कर रखी है और किसी के लिए मैंने तैयार नहीं की है। फरमाया सोमवार के दिन, जुमेरात के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे को माफ करते हैं जिसने शिरक नहीं किया। मुशरिक को तौबा के बगैर माफी नहीं होती। फरमाया हर सोमवार, हर जुमेरात हर बंदे के लिए माफी का ऐलान होता है, लेकिन उस बंदे के लिए कोई माफी नहीं होती जो अपने भाई से लड़ा हुआ है और उसके साथ सुलह नहीं करता। फरमाया फरिश्तों को हुक्म होता है इनके मामले को पीछे कर दो, जब तक ये सुलह नहीं करते इनको माफ नहीं करना, जब तक ये सुलह नहीं करते इनको माफ नहीं करना। लोगों माफ कर दो, अपने भाइयों को माफ कर दो। जिंदगी का कोई पता नहीं, जब इंसान चला जाता है फिर कहता हो मैंने तो उससे माफी मांगनी थी, अब वक्त गुजर गया, अब पता नहीं अल्लाह की सुपुर्द वो माफ करता है कि नहीं करता, वो उसका मामला है। जिंदगी में जिंदगी का कोई सा नहीं है, कोई वसाक नहीं है, पता नहीं है कब चली जाए। इसलिए ये आखिरी लम्हात, रमजान के लम्हात हमसे तकाजा करते हैं, लोगों अपने बाप को माफ कर दो। लोग तो दुश्मनों को माफ कर देते हैं, अपने माई बाप को माफ कर दो, अपने भाइयों को माफ कर दो, अपने बीवी बच्चों को माफ कर दो। किसी के ने ज्यादती कर रखी है उसको सीने से लगा लो, उसको करीब कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ कर देगा। ये चंद एक बातें थी जो बहुत जरूरी हैं, इन आखिरी लम्हात में करने वाली हैं, और ये सारे ही काम जो हैं इंसान की बख्शिश का जरिया बनने वाले हैं, जन्नत में दाखिला देने वाले हैं।
اور جہنم سے آزادی دلوانے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سارے کام کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے، اور آخری لمحات میں اللہ تعالی ہمارے سب کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.